नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नकमा। बात करते हैं बंगाल की सियासत की। नंदीग्राम के बिरुलिया गांव में कल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कथित हमले को लेकर बंगाल की सियासत और भी ज्यादा गर्मा गई है। ममता बनर्जी का ये आरोप है कि प्रचार के दौरान उन पर हमला किया गया है, जिससे उनके पैर में चोट आई। ममता बनर्जी का हालचाल जानने के लिए आज दिन भर अस्पताल में नेताओं का आना जाना लगा रहा। कोलकाता के SSKM अस्पताल में भर्ती ममता बनर्जी को देखने कल जब राज्यपाल पहुंचे तो TMC के समर्थकों ने वापस जाओ के नारे लगाए। इसके बाद तथागत रॉय समेत कई BJP नेता भी ममता से मिलने अस्पताल गए, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। BJP और कांग्रेस ने उनके इस दावे को ड्रामा बताया है। हालांकि कल तक ममता हमला होने और साजिश रचे जाने की बात कर रही थी, लेकिन उनके सुर आज थोड़े नरम दिखे। अस्पताल के बेड से एक वीडियो संदेश जारी करके ममता बनर्जी ने कहा कि नंदीग्राम में वो भीड़ का अभिवादन कर रही थी, उसी समय उनको जोर से धक्का दिया गया, जिससे उनका पैर कुचल गया। ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि वो 2-3 दिनों में ठीक होकर फिर से मैदान में आ जाएंगी। আমি সবাইকে বিশেষ করে আমার যারা কর্মী ভাই বোনেরা আছেন এবং সাধারণ মানুষ আছেন, এটা ঠিক যে কালকে খুব জোর আমার লেগেছিল এবং আমার হাত পায়ে চোট আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে, আর কালকে আমার মাথা এবং চেস্টে খুব পেনও হয়েছে। এত বড় একটা চোট লাগার পরে আমার গাড়ি বনেটের উপরে আমি দাঁড়িয়ে নমস্কার করছিলাম। ন্যাচারালি তখন এমন জোরে চাপ আসে যে তাতে আমার পুরো গাড়িটা চেপে যায় আমার পায়ের মধ্যে। এই অবস্থায় আমার কাছে যা ওষুধ টষুধ ছিল সেগুলো খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমরা কলকাতার দিকে রওনা হই এবং তারপর থেকে ডাক্তারদের চিকিৎসাধীন আমি আছি। আমি অনুরোধ করব আমার সকলের কাছে যে সকলে শান্ত থাকুন, সংযত থাকুন, ভালো থাকুন, আর এমন কিছু করবেন না যাতে মানুষের কোনো অসুবিধা হয়। আমি আশা করি 2-3 দিনের মধ্যে আমি আবার নিজের ফিল্ডে ফিরে যেতে পারবো। তবে হয়তো পায়ের প্রবলেম থাকবে, কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। আমার মিটিং আমি কিছুই নষ্ট করব না, বাট হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের সহযোগিতা চাইব। तो ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी आज जो हैं वो कुछ नर्म हैं और अपने कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने अपील की है कि वो कुछ शांति बनाए रखें। लेकिन कुछ ऐसे लोगों के बयान भी अब सामने आए हैं जो मौके पर मौजूद थे और वो हमले की बात को गलत बता रहे हैं। ইনি ঢোকার গায়ে এখানে লেগেছে, দরজাটা লেগেছে নিজের, কিন্তু কেউ ধাক্কাও মারেনি, কিছু না। উনি বলছেন খোলা ছিল না, উনার দরজা খুলে দেওয়ার মতো তার আলাদা সিকিউরিটি থাকে, দরজা উঠে গেলেও বন্ধ করার মতো আলাদা লোক থাকে। এখানে সাধারণ মানুষের কোনো ভূমিকা নেই। যেখানে জেড প্লাস ক্যাটাগরি থাকে সিকিউরিটি, সেখানে তার উপরে কোনো সিকিউরিটি হয় না। হ্যাঁ, উনি সম্পূর্ণ এটা ভুল বলছে, এর কোনো ভিত্তি, যার কোনো ভিত্তি হয় না। না, আমি বলছি দরজাটা খোলা ছিল না বন্ধ ছিল গাড়ি? উনি দরজা খুলেছে, উনি বেরিয়েছেন, তারপরে গাড়ি থেকে নেমেছিলেন, তারপর হয়তো এখানে লেগেছে। অনেক মানুষের চাপ ছিল, এক পা নামিয়েছিল, এক কখনো নামেননি গাড়ি থেকে, আর গাড়ি আগে চলে গেছে, তাই তো আপনি বলছেন? সেই সময় গাড়িটা এগিয়ে গেছে, মানে মুখ্যমন্ত্রী যখন গাড়ি থেকে নামছিল তখন গাড়ি এগিয়েছে। দুটো গাড়ি ছিল, আগে পুলিশের মতন দুটো গাড়ি ছিল, উনি এটা আগে নামুক পরে নামুক, মানুষ মুখ্যমন্ত্রী গ্রামে এসছে মানে কি সবাই দেখার একটা ছিল, মানে ক্রাউড ছিল। হ্যাঁ, অবশ্যই এখানে মানুষের কোনো নেই যে হচ্ছে উনি এসছে কোনো করি, উনার কি ক্ষতি করবে? উনি একটা CM, মানে বিশাল ব্যাপার। পার্সোনালি ভালো খারাপ কোনো ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু মানুষ দেখতে গেছে, সেখানে উনার নাম, মানে ভিড় ছিল ওখানে। হ্যাঁ, ভিড় ছিল মানুষ। হ্যাঁ, তো ভিড় এটা হতেই পারে। দেখুন, সামান্য আজকে আপনারা আসেন, কত মানুষের ভিড় আছে। যেখানে যদি CM আসে তাহলে মানুষের স্বাভাবিকভাবে তো ভিড় হবেই, এখানে কোনো বলার অপেক্ষা রাখে না। তো ওনার বক্তব্য হচ্ছে যে ওই ভিড়ের মধ্যে ভিড়ে যে ধাক্কাধাক্কি হয় সেটাই এটা হয়ে থাকতে পারে, এটাও বলা যাচ্ছে। এটা কি সত্য হতে পারে যে ভিড়ের ধাক্কাধাক্কিতে ওনার লেগে গেছে? ভিড়ের ধাক্কা নয়, ওনার গাড়িতে উঠতে গিয়ে যদি লেগে থাকে সেটা আংশিক লেগেছে, বাকিটার কোনো ভিত্তি নেই বলে আমি মনে করি। बीजेपी के नेता इसे बिल्कुल कोरी सियासत ठहरा रहे हैं। कुछ देर पहले ही दिलीप घोष ने NDTV ग्रुप के ग्रुप एडिटर श्रीनिवासन जैन से एक एक्सक्लूसिव बातचीत में ये बात कही है। चोट तो किसी को लग सकता है। कोई बोलता है कि वो बोनेट पर बैठी थी, कोई बोलता है कि दरवाजा खोल के गाड़ी जा रही थी, किसी पोस्ट में टकराया गया, उनको चोट लगा। ये दुखजनक है और चोट लगा तो उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए और उसके लिए यहाँ आने की जरूरत नहीं, वहां भी हो सकता था। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, लेकिन ठीक है, चीफ मिनिस्टर हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए।
लेकिन बयान आया कि उन पर हमला हुआ है। खुद बोली 4-5 लोग आए, हमको धक्का मारा है, जबकि उनके पार्टी के लोग सब थे, उनके साथ मिल रही थी, नमस्ते कर रही थी, उनको चोट लगी है। वो वहां हारने वाली है, इसलिए बहाना मांग रही हैं, ये सब नाटक कर रही हैं। वो रैली में है, उनके लोग साथ में है, Z+ कैटेगरी की उनकी सिक्योरिटी है, वहां भाजपा कैसे जाएगी और क्यों जाएगी भाजपा? और हमला कहां से हुई है? कहीं अगर टकरा गया गाड़ी तो उसमें हमारा क्या कसूर है? पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर हमले के दावे पर सवाल उठाए हैं। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारी सुरक्षा के बावजूद मुख्यमंत्री पर हमला हो कैसे गया। कहे जा रहा है कि ये साजिश है, कहे जा रहा है कि उनके ऊपर हमला है, उनको खत्म करने की कोई साजिश भी किया गया है। मेरा सवाल ये है, ममता बनर्जी कोई छोटे मोटे आदमी तो नहीं है, एक बंगाल के मुख्यमंत्री है और एक पुलिस मंत्री भी है। जहां चुनाव लड़ रही हैं चारों तरफ सीसीटीवी छाए हुए हैं, और इसी बीच इसी दरमियान कैसे उनके पास बाहर वाले 4 गुंडे पहुंच चुके और उनके ऊपर हमला बोले और हमला के चलते उनको जख्म हुई, ये सारे बात अब तक स्पष्टीकरण नहीं हुई है। तो हम चाहते हैं कि इतना देर क्यों कर रहे हैं? कम से कम बंगाल के सीआईडी तो है, बंगाल में तो पुलिस के सीआईडी होते हैं, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, लोकल पुलिस भी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी है, सीबीआई है, और खासकर मुख्यमंत्री जैसे एक बड़ा हस्ती, उनके ऊपर इससे कि हमला हो तो आतंकवाद के साथ इसका कोई जुड़ा हुआ संपर्क हो सकते हैं। तो इसके लिए एनआईए को भी बुलाया जा सकता है। कुछ तो कीजिए, दूध और पानी में फर्क हमें मालूम हो। सौरभ गुप्ता हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी। सौरभ, दूध और पानी में फर्क करने की मांग कर रही हैं दूसरी पार्टियां, कांग्रेस इसमें शामिल है, बीजेपी ने इसे ड्रामा बताया है। अब आपको क्या लग रहा है, जब कल बात हो रही थी कि जिस तरह के विजुअल थे उससे सहानुभूति बहुत मिलेगी और ये तस्वीरें बड़ी पावरफुल हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि टीएमसी कुछ बैकफुट पे लग रही है? क्या ममता बनर्जी के तेवर भी कुछ नर्म पड़े हैं? आज बीजेपी के कुछ नेता उनसे मिलने जा रहे थे, उन्हें मिलने भी नहीं दिया गया है, तो ये सब बातें उनके खिलाफ जा सकती हैं। और अब जो ये डिमांड हो रही है कि आप जांच कराएं, उस जांच की क्या खबर है, क्या स्थिति है? सौरभ, आप हमें सुन सकते हैं? सौरभ, आप कहां पे मौजूद हैं इस समय? वहां पर क्या हो रहा है? हम टीएमसी के झंडे देख रहे हैं। देखिए, हम इस वक्त उसी मोड़ पे है जहाँ पे ये हादसा हुआ था और यहाँ पे तृणमूल का एक जुलूस निकाला है। तो तृणमूल को जो लोग हैं वो यहाँ पे पैदल चल के जा रहे हैं इसी मोड़ से। लेकिन मैं आपको संक्षेप में बता दूं क्या हुआ था कल रात को। कल रात को जो हुआ था वो ये है कि इस जगह पर जब ममता बनर्जी की गाड़ी इस रास्ते से आई, ये वाला जो रास्ता है इस रास्ते से आई, तब ममता बनर्जी फुटपाथ पे खड़े होके इस तरफ जो भीड़ इकट्ठे हुए थे इस तरफ उनको हाथ दिखा रहे थे, वो फुटपाथ पे खड़े थे। उस वक्त गाड़ी के जो दरवाजा है कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो पोल है इसमें एक आके अटक गया और उसके वजह से उनके पैर पे दरवाजा बंद हो गया और उनको चोट पहुंची। दूसरी तरफ जो लोग हैं वो कहते हैं कि कुछ क्राउड यहाँ से थी जो इस तरफ आई और दरवाजे पे उसकी वजह से प्रेशर पड़ा और उस प्रेशर से दरवाजा बंद हो गई। और कुछ तृणमूल समर्थक कहते हैं कि यहाँ पे बीजेपी के लोग थे और उन्होंने देखा कि कुछ लोग इस साइड आए और दरवाजा बंद करने के चक्कर में थे, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री को चोट पहुंची। तो ये 2 वर्जन्स है। अब गाड़ी में अगर आप ट्राई करें, तृणमूल कह रही है गाड़ी में कोई इस पोल से टकराने की निशान नहीं है गाड़ी में, तो वो वाला थ्योरी हम काउंट आउट इस वक्त के लिए कर सकते हैं। बची 2 थ्योरी। क्राउड मैनेजमेंट बुरी होने के कारण शायद यहाँ पे जो लोग थे वो गाड़ी की तरफ आ गए और एक एक्सीडेंट के वजह से उनको चोट पहुंची। दूसरी, कुछ लोग शायद ये प्लान बना के आए थे कि कुछ करें, और ये तृणमूल की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे आए थे और उन्होंने जानबूझकर
दरवाजे पे प्रेशर दी और इसकी वजह से दरवाजा बंद हुई और ममता बनर्जी को चोट पहुंची। ये 2 वर्जन अभी चल रहा है, क्योंकि कल रात को इसी समय के आसपास यहाँ पे ये घटना हुई थी और लाइट वगैरह थे जब मुख्यमंत्री इस रास्ते से आए और फिर टर्न करके उधर चले गए। यहाँ पे हादसा होने के बाद उनको इस मिठाई की दुकान से बर्फ लेकर उनके पैर पे लगाया गया और फिर वो उस तरफ चले गए जहां से उनको कलकत्ता रवाना कर दिया गया। अब ये जो तमाम थियोरी चल रही हैं, इसी का इंतजार है कि इन थियोरीज पे से पर्दा हटे और जैसा कांग्रेस भी अब मांग करने लगी है, विपक्ष ये कह रहा है कि इसकी जांच हो। कांग्रेस ने तो यहाँ तक कहा कि मुख्यमंत्री पर अगर हमला होता है तो आतंकवाद से भी जुड़ा मामला हो सकता है, आप क्यों ना NIA को बुला लें। तो ये जो जांच की बात है वो उसके बारे में क्या जानकारी है कि किस तरह की इसमें जांच हो रही है? और रिपोर्ट्स, जैसे चुनाव आयोग ने इसका से डिमांड की थी कि फ्राइडे तक की रिपोर्ट आए कि क्या वहां पर हुआ, तो जो जांच पड़ताल की जो मांग है सौरभ, वो तो विपक्ष से, कांग्रेस के खेमे से भी उठ रही है। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी राज्य में एक ही सुर में बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, और ये बात साफ है अधीर रंजन चौधरी का बयान से। जो बीजेपी कह रहा है वही कांग्रेस कह रहा है यहाँ पे, क्योंकि इनके दोनों पार्टियों, शायद ममता बनर्जी के लड़ रहे, वो उनके एनिमी है और इस मामले में दोनों पार्टी का बिल्कुल सेम बयान रहा है। रही जांच की प्रश्न, तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगे हैं। आज फ्राइडे तक ये रिपोर्ट जमा हो जाएगी, जिसमें प्रिलिमिनरी जो वर्जन है वो बताया जाएगा। और बाकी जो जांच एजेंसी, वैसे कुछ यहाँ पे पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज हुआ है और उस FIR के दौरान यहाँ पे जांच होगी और लोग जो पुलिस स्टेशन है, लोकल पुलिस स्टेशन के लोग भी यहाँ पे आके जांच करेंगे, डिटेल्स इकट्ठे करेंगे कि कैसे ये हादसा हुआ। धन्यवाद आपका। अब उसी गांव में मौजूद हैं इस वक्त, बिरुलिया गांव में नंदीग्राम के हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता वो जगह आपको दिखा रहे थे जहां पर कल ये हादसा लगभग इस वक्त ही हुआ था और वहां से ममता बनर्जी जो हैं वो कलकत्ता के लिए रवाना हो गई, जहां वो इस अस्पताल में भर्ती हैं। और ये नंदीग्राम से ममता के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने अभी पर्चा नहीं भरा है। ये खबर आई थी कि वो 12 तारीख को पर्चा भरेंगे, लेकिन चुनाव प्रचार में वो जोर शोर से जुटे हैं। आज वो सोनाचूरा त्रिलोकेश्वर मंदिर गए, वहां पूजा की, मंदिर में आए लोगों से बातचीत की, कहा कि वो यहाँ सिर्फ पूजा करने आए हैं और किसी मकसद से नहीं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वो कोई कानून नहीं तोड़ेंगे क्योंकि वो कानूनों का सम्मान करते हैं और कहा वो हर साल जल चढ़ाने जाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी बार आए हैं। और अब बात किसानों की। 100 दिनों से भी ज्यादा वक्त से दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर कई महत्वपूर्ण रास्ते रोककर धरने पर बैठे किसान अब पश्चिम बंगाल के सियासी अखाड़े में कूदने जा रहे हैं। किसान 12 से 14 मार्च तक बीजेपी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में कई बड़े कार्यक्रम करने जा रहे हैं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। कृषि कानूनों के खिलाफ बड़ी किसान महापंचायतों में दिखने वाले किसान नेता राकेश टिकैत, बलबीर सिंह राजेवाल और योगेंद्र यादव पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करते नजर आएंगे। किसानों का दावा है कि अगर किसान बीजेपी को जिता सकते हैं तो हरा भी सकते हैं। किसान आंदोलन ने बीजेपी को वोट की चोट देने का फैसला किया है, क्योंकि ये सरकार न तो न्याय की भाषा समझती है, न नैतिकता की भाषा समझती है, न सच झूठ की बात समझती है, संविधान की भाषा नहीं समझती है। बस एक बात जानते हैं, वोट, सीट, इलेक्शन में जीते, सरकार, सत्ता। तो संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला किया, चलिए आपको वही भाषा में हम सिखाते हैं जो भाषा आप जानते हैं। 12 मार्च से 15 मार्च तक कलकत्ता में 12 मार्च को एक रैली होगी, जहां पे किसान दूत पूरे 294 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, किसानों की एक चिट्ठी लेके बंगाल के किसान के नाम। किसान संगठनों के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम में भी किसान नेता राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ प्रचार करेंगे।
किसान संगठनों के आधिकारिक कार्यक्रम के मुताबिक 12 मार्च को कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस और गाड़ियों का मार्च होगा। दोपहर 3 बजे रामलीला पार्क में किसान महापंचायत होगी। 13 मार्च को नंदीग्राम में किसान महापंचायत होगी। 14 मार्च को सिंगूर और आसनसोल में किसान महापंचायतें होंगी। किसान संगठन पश्चिम बंगाल के बाद तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में भी बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। किसान संगठनों का कहना है कि वो लोगों से बिना किसी राजनीतिक दल का नाम लिए बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपील करेंगे, सम्मानित करेंगे। किसान संगठनों का कहना है कि चुनाव पैमाना है कि कानून अच्छा है या नहीं, क्योंकि गुजरात के निकाय चुनाव जब बीजेपी ने जीते तो बीजेपी ने कहा कि गुजरात की जनता ने कृषि कानूनों पर ठप्पा लगाया है। यही वजह है कि अब किसान कह रहे हैं कि इन 5 राज्यों में चुनाव हराने के लिए बीजेपी के खिलाफ वो कैंपेन करेंगे। और इस बहाने एक अच्छी बात जरूर होगी कि कृषि एक चुनावी मुद्दा जरूर बनने जा रहा है। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और तृणमूल कांग्रेस के नेता शौकत रॉय ने कल जो ममता बनर्जी घायल हुई हैं उस मामले में ये जानकारी दी है हमारी सहयोगी मौनिदीपा बनर्जी को कि क्या हुआ है और किस तरह से हुआ है। I just want to show you that on this vehicle there is no mark whatsoever on the door at the footboard of which Mamata Banerjee was standing yesterday, and there are claims that this door accidentally hit some poles on the road, pillars on the road, and that's what crushed her against the vehicle and she was injured. So what she did, she got up, got out of the car. Her right foot was inside, her left foot was outside. Yes, just note here. Her one foot was outside, one foot was inside, and then she stood. She was standing, yes. She was standing like this. Suddenly, 4 or 5 people forcibly closed the door, and that's when she got badly hurt. It has some allegations have been made that there was iron rods on the road, due to which the car door closed. You look at the door. This is the door. There is not even a scratch mark. Correct. If the door had hit some iron post or rod on the road, then there would be vertical scratch marks over here. There are no scratch marks. So it's obvious what happened was that Mamata was standing like this, right, and 4 or 5 people out of the crowd suddenly pushed the door, and that's how she got so badly hurt. तो ये जो कहा जा रहा है कि गेट पे धक्का लगा है और शायद उस वजह से ममता बनर्जी के पैर में चोट आई, उसको शौकत रॉय गलत बता रहे हैं। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं देश की बात में और आगे उत्तर प्रदेश में निषाद वोटों की क्या है अहमियत। और अब बिहार की बात। बिहार में शराबबंदी नाकाम रही है, ये सच सब जानते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके बावजूद इसे जारी रखना प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया हुआ है। लेकिन ताजा घटनाक्रम में एक मंत्री के भाई के जमीन पर शराब जब्त हुई है, पर अब तक कोई कार्रवाई न होने पर तेजस्वी यादव ने आज नीतीश कुमार को शराब माफिया कह डाला। मुजफ्फरपुर के इस विद्यालय से पिछले साल 8 नवंबर को भारी मात्रा में शराब जब्त की गई थी। प्राथमिकी दर्ज हुई और स्कूल के संचालक को गिरफ्तार किया गया। लेकिन विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि दरअसल इस स्कूल के संस्थापक भी अब बिहार सरकार में मंत्री राम स्वरूप राय हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे इस्तीफा लेने की बजाय उनका बचाव कर रहे हैं। असली माफिया बिहार का शराब माफिया अगर कोई है तो नीतीश कुमार जी, और हम लोग चाहते हैं कि तुरंत जो है मंत्री राम सूरत राय जी को बर्खास्त किया जाए, वो आए, स्पष्टीकरण दे, सबूत पेश करें कि मामला क्या है, और इससे कोई अगर जुड़ा मामला है आप लोगों के पास तो आप लोग पूछ सकते हैं। वहीं मंत्री अपने पक्ष में सफाई देते हैं
कि इस विद्यालय की जमीन उनके भाई के नाम से है, लेकिन उनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन सवाल यह है कि मंत्री का भाई अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, या नीतीश कुमार ने अब तक इस जमीन को जब्त कर कोई थाना अपनी घोषणा के अनुसार क्यों नहीं खोला। किरानामा भी है और उस किरानामा के आधार पर वो बच्चा वहाँ कोचिंग कराता था और रात में दारू उतारने का काम किया, जिस कारण से हमारी सरकार के द्वारा जो दारू का अवैध कारोबार पकड़ा जाता, पकड़ा भी गया और अरेस्टिंग भी हुई। उसमें जो टीचर थे, एक लड़की भी थी, एक लड़का भी था जो रात में वहाँ रहता भी था, पति पत्नी शायद है, मेरे को नहीं पता है। वो पकड़ाया भी है, केस भी हुआ है। सिर्फ इतना ही गुनाह है मेरे भाई का कि उसके नाम पर जमीन। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि फिरौती के लिए अपहरण के बाद अवैध शराब का धंधा बिहार में बिना किसी इन्वेस्टमेंट का सबसे फलता फूलता उद्योग है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए पूरे शराबबंदी की योजना अब गले की हड्डी बन चुकी है। वो जो भी दावा करते हैं लोग उसे इसलिए गंभीरता से नहीं लेते क्योंकि अगर अवैध शराब का धंधा पूरे गांव-गांव या गली-गली तक फैला है तो उसका एक बड़ा जिम्मा या आप कह सकते हैं कि पुलिस वालों की सबसे बड़ी संलिप्तता रही है, जिसके मुखिया खुद नीतीश कुमार पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से हैं। पटना से कैमरामैन नागेंद्र तिवारी के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रयागराज में निषाद की बस्ती में पहुंचकर पंचायत क्या कर ली कि उत्तर प्रदेश में 13% निषाद वोट के लिए सियासी जंग छिड़ गई है। प्रियंका के जाते ही इसमें समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों कूद पड़ी है। सबने प्रयागराज में मीटिंग कर दावा किया कि निषादों के सबसे बड़े हिमायती वही हैं। सबसे पहले यहां प्रियंका आई, वो निकली तो उनके साथ मल्लाहों का एक हुजूम निकल पड़ा। नदी किनारे वो गांव-गांव घूमी, यहाँ उन्होंने मल्लाहों के साथ पंचायत भी की। वो नदी में टूटी पड़ी उनकी नावों को देखने गईं, जिन्हें पुलिस ने मल्लाहों पे बालू तस्करी का आरोप लगा के तोड़ डाला था और उन पे लाठीचार्ज किया था। प्रियंका ने मांग की कि नदी पे मल्लाहों को अधिकार दिया जाए। अगर खनन माफिया यहाँ पे खनन कर सकती है तो जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जिनका अधिकार है पट्टों पे, जिनका अधिकार है जमीन पे, जिनका अधिकार है इस नदी पे, वो क्यों नहीं कर सकते। अगले ही दिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रयागराज पहुंचे। उनके पिता मुलायम सिंह ने निषादों के लिए बहुत काम किया था। निषाद बिरादरी की फूलन देवी को उन्होंने चुनाव लड़ा के एमपी बनवाया था। अखिलेश ने पुलिस कार्रवाई की निंदा की और निषादों के साथ खड़े होने का ऐलान किया। ये सरकार बीजेपी ने उनकी नाव नहीं तोड़ी थी, उनके पेट पे रोजी रोटी पर को खत्म करने का काम किया था। और मुझे खुशी है इस बात की कि समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता सबसे पहले उनके बीच पहुंचे थे और जो कुछ मदद कर सकते थे की थी उन्होंने मदद की। इसके बाद निषादों के बीच बीजेपी पहुंच गई। निषादों पे पुलिस लाठीचार्ज और उनकी नावें तोड़ने से वे सरकार से बेहद खफा थे। लिहाजा बीजेपी ने यहां अपनी मीटिंग को निषाद समस्या समाधान समारोह नाम दिया। पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का वादा किया। योगी जी ने जो मुझे कहा उसके आधार पर यहाँ पर एक मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी हो रही होगी, 10 दिन में उसकी रिपोर्ट आएगी। उस इंक्वायरी के आधार पर जो भी अधिकारी, बड़ा हो छोटा हो, जो भी दोषी होगा उसको दंडित किया जाएगा। और साथ ही साथ उसके बीच में जो भी पुलिस के या कोई भी अधिकारी का नाम आ रहा है उनको लाइन हाजिर किया जाएगा। फिर कांग्रेस ने प्रयागराज से बलिया तक नदी अधिकार यात्रा शुरू कर दी, जो अभी चल रही है। इसका नारा है निषादों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। लेकिन इस यात्रा पे हमला हो गया। निषाद पार्टी के लोगों से झड़प हुई। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया। प्रियंका गांधी हमारी प्रभारी महासचिव ने इस संघर्ष की शपथ खाई है कि हम पुत्र को जब तक माता की सेवा का एक छत्र अधिकार नहीं दिला देंगे, ये कांग्रेस का तिरंगा लेकर हर कार्यकर्ता लड़ता रहेगा, संघर्ष करता रहेगा। यूपी के अगले विधानसभा चुनाव में पिछड़े वोटों के लिए बड़ी लड़ाई होनी है। उसमें गंगा जमुना के किनारे बसे निषादों का बड़ा रोल होगा। यूपी में गंगा 27 जिलों से होकर गुजरती है। यहाँ 1140 किलोमीटर बहती है। इनकी 152 विधानसभा और 19 लोकसभा सीटों पे काफी निषाद वोट है। मुलायम ने निषाद फूलन देवी को एमपी बनाया था। निषादों की सियासत में
उन्हें इसका बड़ा फायदा मिला। 2014 से काफी निषाद बीजेपी की तरफ चले गए। अब इन्हें अपनी तरफ खींचने की लड़ाई है। त्रेता में निषाद राज ने भगवान राम की नाव पार लगाई थी। कलयुग में सियासी सवारियां बहुत हैं, देखना है कि किसकी नाव पार लगाते हैं। प्रयागराज में नितिन के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। और इस वक्त देश की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं हरिद्वार में महाशिवरात्रि के मौके पर कुंभ में बहुत सारे श्रद्धालुओं ने किया स्नान और आसमान से फूल बरसाए गए। आज महाशिवरात्रि है और इस मौके पर हरिद्वार कुंभ में आज शाही स्नान हुआ। साधु संतों के अखाड़ों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। उसके अलावा लाखों की संख्या में श्रद्धालु भी उमड़े। हमारे संवाददाता शरद शर्मा के मुताबिक संख्या जरूर बढ़ रही है यहाँ पर, लेकिन मेले जैसा माहौल नहीं बन पा रहा है। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर यह नजारा है शाही स्नान का। शाही स्नान यानी साधु संतों के अखाड़ों का स्नान। महाशिवरात्रि के मौके पर हरिद्वार कुंभ में ये पहला शाही स्नान था। केवल साधु संतों के अखाड़ों ने ही नहीं बल्कि आम लोगों ने भी आस्था की डुबकी लगाई। आम श्रद्धालु सुबह सूर्य उदय से पहले ही भारी संख्या में स्नान के लिए उमड़ पड़े। कुछ लोगों ने शिकायत की है कि 2019 के प्रयागराज के अर्ध कुंभ के इंतजाम बेहतर थे, जबकि हरिद्वार में पूर्ण कुंभ होने के बाद भी इंतजाम नाकाफी हैं। अच्छा लगा, कुल मिला के व्यवस्था तो ठीक है। हाँ। बहुत ज्यादा अच्छी व्यवस्था तो नहीं है। उज्जैन के अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था थी। अच्छा, या इतनी व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। अच्छा, प्रयागराज में अच्छी व्यवस्था थी। प्रयागराज में बहुत शानदार व्यवस्था थी। अच्छा, यहाँ वैसी नहीं है। वहाँ वैसी नहीं है, व्यवस्था बराबर नहीं है। प्रयागराज के इंतजाम इससे बहुत बेहतर थे। अच्छा, व्यवस्थाएं और रहने का, खाने पीने का और जो स्पेस दिया गया था वो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया था। इससे पहले हम प्रयागराज में गए थे। अच्छा, हाँ, वहाँ पे योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी। अच्छा, और यहाँ कैसी है? यहाँ उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है। हाँ। और वहाँ पे तो जैसे हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसा रहे थे। हाँ। और साफ सफाई का मतलब जैसे चलो हेलीकॉप्टर से फूल पुष्प वर्षा एक अलग चीज है, वो तो आगे यहाँ बता रहे हैं यहाँ पे भी हो जाएगी, लेकिन बाकी इंतजाम बताइए। साफ सफाई वहाँ बहुत अच्छी थी, इतनी साफ सफाई यहाँ पे नहीं है। हालांकि प्रयागराज कुंभ की तर्ज पर हरिद्वार में भी हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। सबसे अच्छी बात ये रही कि गंगा नदी में पानी अब बिल्कुल साफ आ रहा है। पिछले दिनों जोशीमठ में हुए हादसे के बाद हरिद्वार में गंगा नदी में पानी बरसात से भी ज्यादा मटमैला आने से श्रद्धालु निराश हुए थे। हरिद्वार कुंभ में स्नान दर स्नान श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन कुंभ मेले जैसा माहौल फिर भी नहीं बन पा रहा है। इसका कारण कोरोना तो है ही, साथ में बात यह भी है कि उत्तराखंड सरकार का सारा फोकस केवल स्नान कराने पर है, चाहे वो आम श्रद्धालुओं का स्नान हो या फिर अखाड़ों का स्नान हो। सरकार की प्रायोरिटी में या सरकार का फोकस मेला लगाने पर बिल्कुल नहीं है और माहौल मेले से ही बनता है। हर की पौड़ी हरिद्वार से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज ठाकुर के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।